BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. Welcome back to another episode of BSSS Rhythm Podcast. This is your host RJ Samadullah, and today we'll be talking about a very important topic, that is our communication skills and how you can learn US or other accent. And for this we have a special guest in our studio today, who is Fiza Khan, who is a communication trainer, IELTS trainer, and a founder and director of Accent Talk, which is an academy, and in addition to that she has worked in so many countries. So without further ado, let's welcome Fiza Khan. Thank you so much, Samad, for having me here. Thanks so much. Actually, BSSS, before we start, let me tell you something. BSSS for me was a dream, but I couldn't make it 10 years ago. There were some problems, but today I'm here. I'm so glad that I'm here. Thank you so much again. Congratulations, ma'am. Yeah. So let me start with the journey. How did I come into this field and what motivated me? So in 2015, I completed my MBA and I was interviewed a month later, in one of the companies in Indore. So I was interviewed by the American boss directly. Okay. So she had this very, beautiful southern US accent. And when she interviewed me, believe me, the interview took 2.5 hours. She just talked to me a lot, we communicated well and we just made a bond and she hired me. So I was there for, some other position, but I was hired as an executive assistant to VP. Okay. And I worked there for 7 months. So I got great exposure to, US accent. I got great exposure to this language. I was really good at that already. So before that, actually, in 2010, there was this application named Line, if you remember. Yeah. So there were so many people you could connect with. So I got this request from the girl named Layali. She was from USA. So she just video called me and I heard her accent, and believe me, I imitated her. I just did her. So I'm very good at doing things, doing accents. So I did her, and from that time I developed this accent, you can say. But I don't have any, particular accent, US or British. It's just neutral accent because I just focus on pronunciation, to pronounce things correctly. And I also train my students to pronounce things correctly. So yeah, this is enunciation. ओके जैसे आपकी जो एक्सेंट टॉक एकेडमी है उसके आप फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं, तो एक्सेंट टॉक एकेडमी में आप मतलब बच्चों को किस चीज़ में ट्रेन करती हैं स्पेशली? समझ मैं फोकस कम्युनिकेशन स्किल पे करती हूँ, राइट? मैंने ये एकेडमी स्टार्ट करी थी बाय द नेम एक्सेंट टॉक, यू कैन सी. सो फर्स्टली मैं सिर्फ एक्सेंट पे फोकस करना चाहती थी, बट आई हैड दीज 2 स्टूडेंट्स, दे आर इन दुबई राइट नाउ, दे आर वर्किंग. सो मेरे पास वो 2 स्टूडेंट्स आए, दे लर्नड एक्सेंट, बट आई फाउंड आउट कि उनके पास कुछ अदर प्रॉब्लम्स भी है. फॉर एग्जाम्पल फ्लुएंसी गैप, राइट? Grammatical mistakes, vocabulary, lexical resource which is known as, and this they were very bad at group discussions and debate and interview preparation. I started with interview preparation too. तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ये सारे subjects को add करूँ और एक कोर्स बनाऊँ. सो आई जस्ट मेड दिस बेसिक टू प्रोफेशनल इंग्लिश कोर्स. सो मैंने सबसे पहले तो उनकी grammar पे work करा, right? So I trained them from basic to advanced grammar. Then I worked on their lexical resource, vocabulary. For example, topic related vocabulary I teach. For example, the topic is crime. So अगर उन्हें future में crime के बारे में बात करना है या लिखना है, तो उनके पास enough vocab होना चाहिए. For example, what is manslaughter, what is this, what is that, what is burglary, उन्हें सब कुछ पता होना चाहिए. तो मैंने धीरे धीरे उनके vocab पे work करा. Then we worked with group discussion and डिबेट. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए थे, तो मैं ग्रुप डिस्कशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ, डिबेट पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि कॉन्वर्सेशनल स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? एक स्पीकर जो है वो सिर्फ बोलता है, राइट? बट एक जो कम्युनिकेटर है, जो कॉन्वर्सेशन होती है, उसमें 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो आपकी लिसनिंग स्किल भी अच्छी होना चाहिए उस टाइम पे. सो यू हैव टू बी फर्स्ट अ गुड लिसनर, राइट? देन यू कैन बी अ गुड स्पीकर. सो एज यू सेड दैट यू आर मोर फोकस्ड ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स, तो मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि बच्चों को आजकल है ना कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है. True. वो प्रैक्टिस करते हैं फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है टू लर्न इंग्लिश कम्युनिकेशन, व्हाट इट विल बी? सी समझ, द थिंग इज फियर, ठीक है? लाइक यू हैव दिस फियर, एंड मैं समझती हूँ कि फियर कभी भी रिमूव नहीं हो सकता.
फॉर एग्जाम्पल मुझे स्नैक से फियर है, सो इफ स्नैक कम्स इन फ्रंट ऑफ मी, मैं नहीं उसको रेजिस्ट कर सकती, राइट, आई विल बी अफ्रेड. सो आप कभी भी फियर को रिमूव नहीं कर सकते, राइट. दिस इज अ मिथ दैट यू कैन रिमूव योर फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. नो, यू कैन कंट्रोल इट, right? And how you can control? By practicing. So practice makes a man perfect. Everybody knows this, right? So आप जितना practice करते हो आप उतने perfect होते जाते हो धीरे धीरे. ओके, सो मैं जब क्लासरूम में ये सब करवाती हूँ, इनिशियली बच्चे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डरते हैं, इवन मेरे सामने बोलने में भी बहुत डरते हैं. बट मैं बोलती हूँ यू आर हियर, यू आर फ्री टू मेक मिस्टेक्स, ठीक है. मैं आपको जज नहीं करूँगी. इवन मैं कभी समद, यू वॉन्ट बिलीव, मैं उन्हें कभी नहीं टोकती. इफ़ दे आर मेकिंग मिस्टेक्स ऑफ ग्रामर, मैं कभी उन्हें करेक्ट नहीं करती, बिकॉज वी हैव इनफ डेज फॉर दैट, राइट. हमारे पास ग्रामर डेज होते हैं, वी हैव वोकैब डेज, तो उन सब पे हम करेक्ट करते हैं उनको. बट व्हेन दे स्पीक, nobody judges them, nobody corrects them. So in this way, धीरे धीरे gradually they improve and they really become fluent in English. ओके. और इससे रिलेटेड ये ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम बहुत से ट्यूटर्स को भी ये कहते हुए सुनते हैं कि वोकैबुलरी एंड ग्रामर आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर इंग्लिश कम्युनिकेशन. सो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ सही है या फिर बच्चे को वोकैब और ग्रामर का भी नॉलेज होना चाहिए? ओके, यू टेल मी. आप फॉर एग्जाम्पल हिंदी हमारी लैंग्वेज है, राइट. तो अगर आप राइट ग्रामर यूज़ नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं होगा इस चीज़ को फॉर एग्जाम्पल क्या बोलते हैं, तो आप कैसे कम्युनिकेट करोगे? सो वोकैब इज़ इम्पॉर्टेंट, ग्रामर इज़ ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट, ओके. बट थिंग इज़, आप सिर्फ ग्रामर से ही इंग्लिश नहीं सीख सकते, मीन्स बोलना नहीं सीख सकते. आपको एक्चुअली रियल वर्ल्ड में उतरना होगा. सराउंड योर सेल्फ विथ इंग्लिश, वी से रीड इन इंग्लिश, राइट इंग्लिश, लिसन टू इंग्लिश एंड स्पीक इंग्लिश. तब जब ये चार मॉड्यूल्स जो हैं उन पे फोकस करते हैं, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, तो आप ऑटोमेटिकली बहुत फ्लुएंट हो जाते हैं. एंड ग्रामर इज़ एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट. अगर आप राइट टेंस यूज़ नहीं कर रहे, सो हाउ वुड यू कम्युनिकेट वेल, राइट. सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. vocab is very important in all the 4 modules, right? Let's talk about reading. आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ओके. सो अगर आपको वर्ड पता ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी वर्ड है, पर्टिकुलर वर्ड सलाइवा, अगर आपको उसका मतलब ही नहीं पता, तो आप कैसे समझोगे वो कॉन्टेक्स्ट? ओके, सो वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है. देन कम्स टू राइटिंग. अगर आप लिख रहे हैं कुछ और वोकैबुलरी आप इनफ यूज़ नहीं कर रहे, बेसिक वोकैब यूज़ कर रहे हैं, तो आप प्रोफेशनल राइटिंग नहीं लगती. देन इन लिसनिंग टू, अगर कोई सामने वाला कुछ बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आल केव, सो आपको पता ही नहीं है केव का मतलब क्या है. आपको पता है कि वो गुफा होती है, बट केव का मतलब ये भी होता है कि मैं मान जाऊंगा या ये चीज़ कर लूँगा मनाने के बाद. सो इफ आपको पता ही नहीं है केव का मतलब क्या है, तो आप उस बंदे को कैसे समझोगे? Same with the speaking. So if you grammar don't and use, vocabulary is equally vocab important. is very, very important. I'm the IELTS trainer too, sir. So if I train my students कि आपको जो vocab है वो बहुत high level की use करना है, और मेरे students के 9 bands, 8.5 bands ही आते हैं IELTS में. Yes. Right. तो IELTS, जैसे आप IELTS ट्रेनर भी हैं, तो बच्चों को IELTS में भी बहुत दिक्कत होती है. वो बार बार अटेम्प्ट करते हैं, उनका मनी भी वेस्ट होता है बिकॉज इट्स वेरी कॉस्टली. 15,000. सो IELTS के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? ओके, सो मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा आप इंस्टीट्यूट में इन्वेस्ट ना करें आइल्स के लिए, बिकॉज दे चार्ज टू मच. व्हाई डू दे चार्ज सो मच? बिकॉज एक कहते हैं ना हवा बना हुआ है, इट्स लाइक अ गोस्ट. आइल्स इज द गोस्ट, बट बिलीव मी इट्स नॉट. अगर आप ये चारों चीज़ों पे फोकस करते हैं, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, तो आप खुद ही क्रैक कर सकते हैं. मेरी एक स्टूडेंट है, अनुष्का नेम है उसका. मैंने उसे 6 months पढ़ाया है, ठीक है. उसके बाद उसने आइल्स अटैम्प्ट करा, उसको डिजायर्ड बैंड्स आ गए, 8 बैंड्स उसके थे ओवरऑल. उसने बोला कि मैंने तो कुछ आइल्स का पढ़ा ही नहीं, फिर मेरा क्यों ये बैंड्स आए? सो द थिंग इज़ दैट उसने अपने आप को सराउंड करा इंग्लिश से. वो इंग्लिश लिखती थी, आई गेव हर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स, वो कैब्स यूज़ करती थी. उसकी ग्रामेटिकल रेंज जो थी वो बहुत परफेक्ट थी. रेंज मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ही यूज्ड. लिसनिंग अच्छी थी बिकॉज हम लोग सिर्फ इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करते हैं. तो आइल्स में एक्चुअली लिसनिंग के लिए वन थिंग आई वुड लाइक टू से समझ, आपको एक्सेंट की नॉलेज होना चाहिए, आपको एक्सेंट समझ आना चाहिए, ठीक है. अमेरिकन, ब्रिटिश एक्सेंट दोनों समझ आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको वो नहीं आएंगे तो आप मिस कर देंगे क्वेश्चन, क्योंकि उसमें लिसनिंग का भी टेस्ट लिसनिंग का टेस्ट होता है. ब्रिटिश एक्सेंट यूज़ करते हैं. अब ब्रिटिश में भी बहुत सारे एक्सेंट होते हैं, कॉकनी एक्सेंट, स्कॉटिश एक्सेंट, पॉश एक्सेंट, लंदन एक्सेंट, आयरिश एक्सेंट, तो आपको वो सब समझ आना चाहिए. तो अब यहीं से मैं एक और क्वेश्चन उठाना चाहूँगा कि जो एक्सेंट है उसमें भी, क्योंकि मैंने भी 15 days की ट्रेनिंग की थी, तो आई फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट. इज इट? या 15 days नेट लिंक में की थी, तो मुझे उसमें बहुत दिक्कत आई थी. ऑल्दो मैंने बहुत से प्रोनाउंसिएशन सीख लिए हैं अभी भी, लेकिन मैं फिर भी उन्हें अभी रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ.
तो उसके लिए भी बच्चा कैसे प्रैक्टिस कर सकता है? ओके समझ, चलो हम बात Yeah. करते हैं एक बेबी की। जब बेबी बॉर्न होता है वो कैसे सीखता है लैंग्वेज, कैसे एक्सेंट पिकअप करता है, बताओ। सुन सुन के। सुन के, किसको, मदर को, फादर को, राइट, आसपास के लोगों को। तो आप भी सुनो, BBC न्यूज़ सुनो, राइट, सीरीज देखो, उन्हें मैंने बोला ना, उन्हें इमिटेट करो। मैंने कैसे इमिटेट करा था लयाली को, राइट, एक बार ही करा, उसके बाद मैं कभी नहीं भूली। तो आप में वो चाहत होनी चाहिए, राइट, यू शुड हैव दिस डिज़ायर दैट येस आई कैन डू दैट। सो आप सुनो 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 सुनो, वन डे यू विल पिक अप, आपको जो भी एक्सेंट पिकअप करना है। ओके बट एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, आप एक्सेंट पे ज़्यादा फोकस मत करो, मैं भी नहीं करती। यू फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन। Pronunciation is very important. Enunciation means right pronunciation of a word. तो उस पर आप फोकस करें, you will have a beautiful accent then. तो मैम अगला क्वेश्चन मेरा आपके लिए ये है कि बहुत से लोगों को है ना कम्युनिकेशन, इंग्लिश में उनकी बहुत अच्छी है, ग्रामर में भी दे आर परफेक्ट, वोकैबुलरी भी अच्छी है, बट दे लैक इन कॉन्फिडेंस वेन एवर दे गो, मतलब उनकी एंग्जाइटी होने लगती है उनको। ट्रू लाइक मेरे पास तो बहुत स्टूडेंट्स आते हैं ऐसे, दे आर रियली गुड एट दैट, यू नो, व्हेन दे राइट। तो वो उस चीज से कैसे ओवरकम कर सकते हैं? प्रैक्टिस से। मैंने बोला ना, स्पेशल डेज होते हैं या ग्रुप डिस्कशन, डिबेट। मैं खुद देखती हूँ ना, जब मैं पढ़ाती हूँ मुझे पता है ये बंदा अभी इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, राइट, बट आफ्टर सम टाइम कैसे आ जाता है। आई एम नॉट अ मैजिशियन नॉर आई डू एनी मैजिक, राइट, मैं कुछ भी ऐसा स्पेशल प्रोवाइड नहीं करती, वो सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। सेकंड, आई बिलीव इन दैट पर्सन, सो मैं बोलती हूँ नो, यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इफ यू आर स्पीकिंग, राइट, सो आप बोलो, एवरीबडी इज लिसनिंग टू यू, एंड व्हाई आर यू मेकिंग देम जज? आप उन्हें जज क्यों बना रहे हो, राइट? अगर आपके पास, आपको ये फियर है कि आई विल बी जज, आई विल मेक अ मिस्टेक, सो आप उन्हें क्यों ये चांस दे रहे हो कि वो आपको जज करें, राइट? सो वो भी परफेक्ट नहीं है। इफ यू मेक अ मिस्टेक इट्स ओके, दिस इज हाउ यू लर्न, और मिस्टेक नहीं करोगे सो यू विल नेवर लर्न। ओके, तो अब इंग्लिश कम्युनिकेशन से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि बच्चे क्या करते हैं कि बिकॉज हिंदी का कॉन्टेक्स्ट अलग होता है और इंग्लिश का अलग होता है, तो वो प्रॉपर हिंदी का सेंटेंस उठाकर उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो वो जो थिंकिंग की प्रोसेस होती है कि अपन थिंक इंग्लिश में क्या करें, तो वो कैसे कर सकता है बच्चा? या थिंक इन इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे हमारे स्कूल्स बहुत ज़्यादा पीछे हैं इस मामले में, बिकॉज दे आर टीचर्स देयर, दे स्पीक हिंदी, राइट, दे कम्युनिकेट इन हिंदी मोस्ट ऑफ द टाइम। सो क्या होता है, बच्चा फिर कैसे इंग्लिश सीखेगा? जब मैं पढ़ाती हूँ, मैं सिखाती हूँ, तो मैं कभी हिंदी बोलती नहीं हूँ, इवन दे आर नॉट अलाउड। जब वो बोलते हैं मैं सुनती भी नहीं हूँ उनको, मैं बोलती हूँ यहाँ पे अलाउ ही नहीं है, यू कैन स्पीक हिंदी। सो मैं इंग्लिश में ही पढ़ाती हूँ, इंग्लिश टू इंग्लिश, तो मैं उन्हें ट्रांसलेशन सिखाती ही नहीं हूँ ना, वो आते ही नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड जो है, जब हम फॉर एग्जांपल अगर हम हिंदी टू इंग्लिश लर्न करते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ट्रांसलेट करता है, तो वो ट्रांसलेशन में ही इतना टाइम लग जाता है कि फ्लुएंसी गैप आ जाता है। तो आप इंग्लिश टू इंग्लिश ही लर्न करें। मैंने बोला ना, लिसन टू इंग्लिश। साइलेंस भी इसी वजह से होती है। यस बिकॉज दे ट्रांसलेट, सो यू शुडंट। आप नेचुरली इसे लर्न करो ना, यू हैव सो मैनी थिंग्स टू डू। आपके पास यूट्यूब है, आपके पास इतने सारे पॉडकास्ट्स हैं, राइट, यू कैन लिसन टू सो मैनी पॉडकास्ट्स। सो आप ये सब करोगे, यू विल ऑटोमेटिकली स्पीक इंग्लिश। ओके, तो मेन फोकस आपका प्रैक्टिस पे होना चाहिए, ताकि और 4 चीज़ें जो आपने बताई, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग। तो रीडिंग ऑल्सो मैंने काफ़ी बार सुना है कि रीडिंग भी बहुत, अगर आप करते हैं तो आप स्पीक करने लगते हैं उसके, तो रीडिंग भी इंपॉर्टेंट होती है। रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू आर अ गुड रीडर, यू आर गुड राइटर, बिकॉज आप उससे पिक करते हो वोकैबुलरी, आप पिक करते हो कि सेंटेंस कैसे फ्रेम होता है, राइट। सो 7 जो सीज हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के, राइट, यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट, कंक्रीट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। सो ये सब जो है आप उसी से सीखते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू रीड अ न्यूज़पेपर, तो आप उसमें देखते हो कि कैसे लिखा है, वो आपके सबकॉन्शियस में ऑलरेडी रहता है। जब आप लिखते हो तो यू नो पिक अप दिस स्टाइल। ओके, तो अब जैसे रीडिंग, अभी आपने बोला कि सीरीज देख सकते हैं अपन, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, तो अब एक्सेंट में इंडियन पॉडकास्ट तो इजीली कंज्यूम कर लेते हैं सारे लोग, बट व्हेन इट कम्स टू यूएस एक्सेंट, जो उसमें यूएस एक्सेंट यूज़ हुआ होता है उन पॉडकास्ट में, वो सुनने में भी उन्हें प्रॉब्लम होती है। और बाकी सीरीज भी अगर हम देखते हैं तो हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर पाते कंटेंट को, तो आप सबटाइटल से स्टार्टिंग में यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम सबटाइटल्स। आप धीरे धीरे ग्रेजुअली उससे फिर हटा सकते हो। मीन्स आप शुरू में सुनोगे, आपको बहुत टाइम लगेगा, यू कैन से 6 months, बट आफ्टर सम टाइम यू विल नॉट नीड एनी टाइम देना जरूरी है। यू हैव टू गिव टाइम, लाइक यू हैव टू गिव एट लीस्ट half an hour टू English if you really want to learn, not just accent, everything. I focus on 4 modules I told you, right? So you have to work on everything.
तो अब लास्ट मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ऐसी कोई 2 या 3 चीज़ें जो आप हमारे लिसनर्स को बताना चाहें, जो कि आइल्स, जो मेनली आइल्स सीखना चाहते हैं और उसके साथ एक्सेंट में भी कमांड बनाना चाहते हैं. ठीक है, मैं अब Okay. इतनी देर से आई थिंक वी हैव बीन टॉकिंग Yeah, अबाउट but इट कि एक प्रैक्टिस conclusion. करो, राइट. Yeah. आपको टाइम देना पड़ेगा. इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, टाइम देना पड़ेगा. एंड समझ, इंग्लिश इज़ द इंटरनेशनल लैंग्वेज, राइट. Yeah, sure. इट्स द बिजनेस लैंग्वेज. अगर आपको अपना काम करवाना है, आई से इट्स नॉट एन आर्ट, इट्स अ टूल टू गेट योर वर्क डन. सो जब मैं ट्रैवल करती थी, आई हैव बीन टू सो मेनी अफ्रीकन कंट्रीज, इंक्लूडिंग साउथ अफ्रीका, टैंजानिया, मलावी, केन्या, So and there you yeah, get Bahrain, you Dubai. give sessions. Yeah, I used to, no, not the sessions. I was the public speaker. Okay. Yeah, so That's I very was great. company representative too. Okay. So I would like to share one thing. Yeah, sure. It was my first time I was on stage in Dubai. Okay. So Megha Thakur was there. She was an anchor, She's an but anchor. we didn't have any public speaker. Okay. So my boss came to me and he told me that you have to do that, and I wasn't appointed for this. I was like, no, I can't do that. I haven't done it. Okay. But he said, no, you can do this. Then I asked Megha how to do that, how to be on a stage. She said, you're better than me. Okay, she said, you're better than me. You will do that. And I was like, okay, I'll do that. I just went there and I got on the stage. Just मुझे सब्जेक्ट की नॉलेज थी, मुझे ब्लॉकचेन पे प्रेजेंटेशन देना था. तो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, प्रैक्टिस ही नहीं, आपको नॉलेज भी तो होना चाहिए सब्जेक्ट की. सो मुझे ब्लॉकचेन पे ब्लॉकचेन अगर नॉलेज नहीं होती तो फिर सो मुझे possible पता था बहुत अच्छा. मैंने बस स्टार्ट करा. कॉन्फिडेंस ऐसे कि मैं समझती हूँ कि सामने जो बैठा है, दे डोंट नो एनीथिंग, आई नो एवरीथिंग एंड आई एम गोना टेल देम दैट व्हाट इज दिस. सो बस ये That's है. a very good strategy. एंड आई कॉन्टैक्ट रखा मैंने. स्माइल ऑलवेज, व्हेनेवर यू गो एनीवेयर, जस्ट बिगिन विद अ स्माइल. मैंने बोला आपकी वाइब जो होती है ना, एनर्जी, वो पहले एंटर होती है, आपसे भी पहले. रूम में जब आप एंटर होते हो उससे पहले आपकी वाइब हो चुकी होती है. सो ऑलवेज बी पॉजिटिव. ओके, बिगिन विद अ स्माइल एंड देन कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है. आप बस 5 मिनट्स बोलोगे ना कॉन्फिडेंटली, आप खुद ही ऑटोमेटिकली बोलने लगोगे. Okay. So this is how you can do this. And what question did you ask कि कैसे? हाँ, तो प्रैक्टिस मैंने बोला कि आप बस अपने आप को सराउंड कर लो इंग्लिश से, आप सीख जाओगे. आप ये चारों चीज़ करो, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, आप बहुत जल्दी सीख जाओगे. और ये व्हाट आई सेड कि ये एक टूल है आपका काम करवाने के लिए. इट्स अ टूल टू गेट योर वर्क डन. मैं जब ये कंट्रीज़ में ट्रैवल करी, सो वन थिंग आई रियलाइज़ कि हर इंसान इंग्लिश बोलता है और हर इंसान को इंग्लिश आती है. आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आएगी, राइट. आपको मलावी में वहाँ की लैंग्वेज नहीं आएगी, बट आपको इंग्लिश आती थी, राइट. और उसकी वजह से मेरे सारे काम होते जाते थे. यूनिवर्सल. इट्स अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज. आपको कुछ भी मीन्स स्कोप की बात करें तो बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, यू शुड नो इंग्लिश. फॉर एग्जांपल, पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, मुझे ये बेचना है. इफ आई वांट टू सेल दिस, हाउ वुड आई सेल इट, राइट. तो मुझे बात करना आना चाहिए. और किस में आना चाहिए? इंग्लिश में आना चाहिए. अगर मुझे वर्ल्ड तक रीच करना है तो. ओके. तो काफ़ी कुछ हमें आज फिज़ा मैम से सीखने को मिला और इसमें ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो डिफरेंट आंसर हमें प्रोवाइड कर रही थी. जैसे हमें बोला जाता है कि वोकैबुलरी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एंड ग्रामर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश कम्युनिकेशन, बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट. सो आई होप आपको इस सेशन से बहुत ज़्यादा इंसाइट्स देखने को मिले होंगे कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड, आइल्स से रिलेटेड, और बहुत से आपके डाउट्स भी इस चीज़ से क्लियर हुए होंगे. तो अभी मैं आपसे लेना चाहूँगा विदा. मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ. जब तक के लिए सुनते रहिए और देखते रहिए BSSS रिदम पॉडकास्ट. BSSS Rhythm.